you have a major blockage in your artery. So typically, if I'm running, I do have a target in mind, and I wake up at about 4:15, 4:30 every morning. It's my schedule is already fixed. So as a matter of fact, that excitement, I sometimes end up spoiling my sleep also. Okay, I need to do this target. So yes, so now it is a very positive and something I'm looking forward to. Uh, Being out in the early morning, I mean, we don't have the most fresh air, so I think morning it's good. In the last 5, 6 months, I've become more comfortable with the longer distance run. Even this morning, I actually gone out for a walk. I had not even carried my water. I normally put lights on me so that I'm visible on the road. But the weather was so nice that I just started running and I ended up running 12 kilometers. And since the doctor said it's fine, there's no problem. As a matter of fact, he said that if you're regular, then it's okay. Maybe I have bigger plans about running. Let's see. Yes, of course. And Abhi, recently I ran from here to India Gate also. That was also about 25 or 26 nice. kilometers. 1st February, it was 2 hours, 12 minutes. My first half marathon, yes. So I started smoking pretty early. I think college से college के just बाद I started smoking. Like in December, I had gone for a month-long vacation. And when I travel, I normally say कि मैं सब कुछ खाऊंगा. अच्छे से हाँ. And whatever वहाँ पे क्या selective होना है, I am normally selective at home because here I can say what क्या बनाना है, क्या करना है, Right, क्या करना है. घर के बाहर जैसे आपके पास कंट्रोल है, मेरे को नहीं है. मैं
मैं बोलता अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है ये खा लो, वो बर्गर पिज्जा ही खा लो या व्हाटएवर आई मीन यू नो हाँ, I got you. आई लव छोले भटूरे Okay. लेकिन ईटिंग हैबिट्स एंड दैट जो कि नॉर्मल एक जने के हिसाब से होती है, नॉट वेरी गुड। कि बहुत ज्यादा आइस, बिकॉज द वे व्हेन एटलीस्ट आई लुक बैक, कि बहुत ज्यादा आइस लेनी एंड ईटिंग, लाइक हम हर जने को शौक होता है, सो ईटिंग एवरीथिंग, ड्रिंकिंग, नॉट दैट मच ड्रिंकिंग, लेकिन जैसे शौक के हिसाब से। He was very fond of eating, he was very fond of partying, going out. And I think जब आप इन सब चीज़ों का शौक रखते हैं तो आपकी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। जेनेती कुछ भी नहीं था उस जमाने में, ना तो खेलता था ना पढ़ाई करता था। फिर about 10 years back also I got into a lot of motorcycling Mm-hmm. and there it's all about also about you know it's just not motorcycling but you enjoy, you drink, you smoke, you eat, so it's part of it. So somewhere down the So line you got with friends who were doing, yes right? of course, so you know then I would feel little bored in parties or when friends got together I said okay एक कश दे दो, एक drag दे दो. This was after 5 years of quitting smoking. एंड वो एक कश, एक ड्रैग, एक ये करते करते फिर एक सिगरेट हो गया दिन में, फिर एक दिन में, एक शाम को हो गया, धीरे धीरे करके आई वाज बैक टू माय स्कूल में लोगों को देखता था, अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स, everybody excelling in their sports and enjoying sports whatever. मैं भी थोड़ा बहुत करता था बट ना ही मेरे को उस समय एटीट्यूड था, ना ही मेरे माय बॉडी आल्सो आई वाज प्रीटी ओवरवेट ऑल माय लाइफ. मतलब मेरे फ्रैक्चर मेरे राइट हैंड का हुआ था 1978 में. तो उसके बाद से आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड तब से आई हैव बीन कैरिंग दिस वेट टिल रिसेंटली. तो सारे दिन शुरू में टफ थे सारे. मतलब मैं साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन करता था, मुझे लगता था कि अरे मैं सारे साइकिलिंग ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप में जब चलाते हैं तो जनरली लोग जो पीछे छूट जाते हैं उनको उनके लिए वेट करते हैं या आगे जाके चला के वेट करते हैं. चाहे भागने के लिए भी सेम थिंग, मतलब पीपल वेट. आई एम वेरी कॉन्शियस कि मतलब मुझे किसी को भी वेट कराना, डिले कराना या किसी को पीछे, मतलब मैं किसी को पुल डाउन कर रहा हूँ, वो एक इट्स नॉट इन माय नेचर. सो मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी. सो ऑल माय डेज यूज्ड टू बी टफ बिकॉज आई यूज्ड टू बी ऑलवेज ना मेरे पास स्टैमिना था ना, एंड आई वाज पुलिंग वेदर इट वाज वॉक्स, हाइक्स. ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये 2 साल में ही करा है या 3 साल में किया, पहले भी ट्राई किया है, बट गिवन माय वेट, गिवन माय स्टैमिना and also that I used to smoke heavily at that time, so I used to get exhausted. पहले आपके साथ मतलब how was your lifestyle like जो आप बताते थे, बिल्कुल ऑफ था, right? बिल्कुल ऑफ था बट क्योंकि I was diagnosed with diabetes and Okay. high blood pressure, so I was told कि सुबह ब्रिस्क कर लो, and हाँ, I was overweight, I was obese. हाँ.
he was so fat. जब मैं जैसे मिली थी तो जय इतना खाते थे कि we ordered one day in office, Subway order करा. Normal people change का खाते हैं एंड जय ने कहा मेरे लिए 2 ऑर्डर करना. वो 2 ऑर्डर करने के बाद जय ने वो 2 भी खाए. फिर उसके बाद एक पूरा शेक भी पिया. एक एंड आई लाइक इस आदमी खाता कितना है ये? इसका कितना डाइट है? लाइक कितना खा सकता है कोई इंसान? सो मैं ऐसे जैसे मिली थी एंड खाना हमेशा जय को बहुत 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 पसंद था. मतलब जब हमारी शादी हुई तभी भी सबने कहा अरे वाह दोनों बड़े मेड फॉर ईच अदर है, गोलू मोलू दोनों. एंड वी वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर. ऐसे चलो मेरे जैसे ही मिल गया एक. और थोड़े साल निकल गए, कोविड आया, फिर हम दोनों ने खाने बनाने शुरू करे घर के अंदर. खाने बनाने शुरू करे और खाने खाने शुरू करे तो हम और ज्यादा फैल गए. बट इट वाज फाइन क्योंकि हम दोनों ऐसे ही गोल गोल थे. बट एक दिन कोविड के बाद सडनली डॉक्टर ने बोला जयको कि स्टंट लगेगा. एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. जब मैंने जय जी को देखा, जय जी राउंड थे. मुझे ऐसे लगता था फेस में और स्टमक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. बड़े क्यूट लगते थे वो. ओके. हगेबल टेडी बियर टाइप. और जब हम शुरू में उनसे इंट्रोड्यूस हुए तो हम उनको देख के ये था कि हाँ ये तो बड़े मोटे हैं. भाई he was a jolly good old fat fellow. You see, इसको बड़ा शौक था अच्छी जिंदगी जीने का. उससे कोई उम्मीद नहीं थी. I need you to understand the seriousness of this. You have a major blockage in your artery. If this continues untreated, the risk to your heart can become life-threatening. I was experiencing some chest pains. हम माउंट आबू गए थे. कुछ एक my father-in-law was doing a मंदिर की स्थापना over there, so उसमें गए थे. तो वहाँ पे मतलब चढ़ाई बढ़ाई है माउंट आबू में. एंड मुझे ट्रेन से ही पता नहीं, I was feeling uneasy. I could not sleep in the train also. Abnormal sort of a pain. The pain, it was not related to heart जितना जो भी डॉक्टर ने बोला. बट फिर और भी ये कलर सीटी या क्या तो कलर एंजियो ये सब कुछ हुआ था. उसमें मेरा एक ब्लॉकेज निकला. इट वाज नॉट क्रूशियल क्रिटिकल, बट डॉक्टर ने बोला आप जितनी जल्दी करा लो तो अच्छा रहेगा. और मुझे ये सब I don't like to keep these things, so I said let's go in for the surgery. This was about 3 years ago. बड़ा स्टेंट लगा, so it was not just a minor thing. It was the blockage काफी बड़ा सा डिटेक्ट हुआ. Diagnostic tests are not the ultimate decision. एक बार जब ये स्टेंट मुझे लग गया था तो मैंने कहा कि अब मुझे कुछ तो करना है. बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बोला है, मेरा बिगेस्ट फियर इज लीडिंग अ असिस्टेड एंड डिपेंडेंट लाइफ. सो आई सेड कि मुझे कुछ तो करना है जो आई एटलीस्ट अपनी तरफ से मैं कुछ कर लूं. बाकी गॉड एंड whatever my lies in future, I don't know, ये तो कुछ नहीं है. But I said कि from my side I should do things. Earlier I would have blamed myself. मेरा fortunately ये एक fear phobia हो गया था कि I cannot live my old age and dependent on somebody. Okay. मतलब ये सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी. Last for too long. Exactly. I last for too long is That what too quality. exactly Quality it is of the life. quality of life which I was concerned Which will. about. If I die suddenly, I have no problems. Right. But if my quality of my life goes down Got your. in terms of my well-being, that is what scared me. That's more bigger suffering than dying all of a sudden, right? True. True. Right. That is suffering. I mean, Right. that is the part of. I mean, if you die suddenly, then your family suffers, not you. He was the person जो किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहता था. Right? बोलता है यार नीरज,
I don't want to depend on anybody else at any point in my life. ये जनितिन कल रात की बात कर रहा हूं मैं. तो that is what motivated him. जब उसको रियलाइज हुआ यार मेरा स्टेंट लग गया, आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर माय फूड, मेडिसिन, फॉर एनीथिंग, वो किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहता है. अगर जो मेरे हिसाब से नहीं होता है कुछ चीज तो मैं थोड़ा हाइपर सा हो जाता हूँ. आई मीन या मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे क्यों नहीं सोच रहे. सो लोगों को थोड़ा सा डर है. पहले मैं बहुत गुस्सा होता था ऑफिस में भी या इवन एट होम. आई थिंक ये चीज में चेंज हुई है. सो ऐसे एक बार फ्रेंड्स बात कर रहे थे एंड वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग हाउ मच वी स्पेंड ऑन सिगरेट्स. ओके. एंड आई सेड ओ आई कैन सेव सो मच मनी. वैसे मैंने आज तक इतने ये पैसे कहीं पे दिखे ही नहीं सेविंग, बट एनीवेज दैट वाज अ डिफरेंट मैटर. बट एट दैट टाइम इट वाज दैट ओ आई कैन सेव सो मच मनी. सो एक दिन मैंने डिसाइड किया एंड आई थिंक एक हफ्ता लगा ना हाँ करते हुए. कभी बोला कि मैं कम कर रहा हूँ, कभी बोल रहा हूँ कि अच्छा ओनली मॉर्निंग सिगरेट, ओनली दिस, बट आई कुड नॉट. सो आई सेड कि नहीं, इसको तो आई नीड टू कट इट. सो वन डे आई सेड नो मोर सिगरेट्स. सो आई डिड हैव problems, I had withdrawal symptoms, I had everything, but I managed to just stop it at that time. Okay. Wanted to because I felt nice when I was not smoking अच्छा, back then. these 5 years. This 5 years. हाँ. So I said that I needed to stop smoking again हाँ. because what have I done? I do like smoking, so I now stay away from that one drag also because that one drag will undo all my And it starts. tapasya. Right. So then I started again this project that I would like to stop smoking. तो शुरू करो, but नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा था ना, मतलब Okay. withdrawal symptoms, body aches. Okay. And you know, it's also an excuse. All smokers say परेशानी है तो सिगरेट पियो, हाँ, खुशी है तो सिगरेट पियो, हाँ. सुबह सिगरेट पियो, 100%. कॉफी के साथ सिगरेट पियो. So ये सब so then I started reading a little bit. It said break these associations. मैं जैसे हमेशा ऑफिस में कॉफी के साथ सिगरेट ही पीता था. Okay. सो अगर जो सिगरेट लिया तो कॉफी भी लेता था, कॉफी लिया तो सिगरेट भी तो लेता. कॉफी बन. सो मैंने कहा कि नहीं, पहले तो मैंने कहा कि इन दोनों को अलग कर दो. अच्छा. Okay. बंद नहीं किया, Strange. हाँ, that's good. So Nice. I was breaking the association. Okay. Morning I have to smoke. No, why should you smoke in the morning? Okay. So I said okay, not when I get up, but maybe. अच्छा. Means you जो habits थे you were मतलब breaking it. जो है ना? एक किसी event के साथ associate हो रहा था, हाँ, मैं हाँ, उसको I started breaking. That's good. Good strategy, no? Good strategy. Yeah, I came across. हाँ, it, that's good. That's not nice. My नहीं, that's जो भी मैंने ये पहली बार सुना है. That's why I'm saying. So That's good strategy. Yes. because उसमें जब भी आप, there were so many associations. You felt not so happy, you wanted to smoke. You felt sad, you wanted to smoke. You were celebrating something, you were wanting to smoke. You had coffee, you were smoking. I used to get a call and I used to say, oh, this may be long, I would smoke. So, you know, all these things I started breaking. I was still smoking because I could not leave it. But then again, I was talking to a friend of mine and he suggested me medicine. I'll not take the name of that medicine. It's okay. But it was prescription medicine. Okay. And Prescribed by a doctor. yes. Right. Yeah. I mean, first So my it doctor was- suggested. It was under supervision, Ah. right? Ah. So first my friend suggested this. I never knew about this. Okay. Then I went to my physician who prescribed, and then I took this. It wasn't good. It had its side effects. Okay. I mean, there were some side effects which were
I mean, terrible. There were terrible nausea you had. You used to have nightmares. So all these things. But मैंने कहा नहीं, ये मुझे अपना इस मेडिसिन का कोर्स पूरा ही करना है. Okay. And तभी so this gave me that window to stay away from cigarette. Because what this medicine did was, I never liked the taste of cigarette, the smell of smoke, the smell of paper. ये सारी चीजें ना से चिढ़ मुझने लगी थी. Okay. So ये जो भी 1-2 महीने का कोर्स था, but इसने ये वो गैप मुझे दे दिया जो. अच्छा, okay. So इससे withdrawal symptoms हुए कुछ? हुए. Okay. But आपको I used to take a cigarette and go it. So withdrawal. So you had to put up with the withdrawal symptoms. Oh, okay. So you had to live with it. You had to withdrawal symptoms होंगे then. If you were having that medicine, you were having the withdrawal symptom. I reached out for the cigarette. You can't. And I never liked it. It was terrible. Okay. Yes. Am I right? Exactly. के withdrawal symptoms भी Exactly. धीरे-धीरे So करके. जैसे 2 महीने या 1.5 महीने, whatever this medicine course was, by which time my withdrawal system started. So it is important to keep long term view ना. Yes. कि थोड़ा सा लंबा सोच के अगर हम ये काम करते हैं कि अगर सिगरेट धीरे-धीरे करके छोड़ते हैं तो withdrawal symptoms होंगे but it will ease it off. मतलब body will start managing, है ना? That. So the biggest thing is your willpower. I mean, अगर जो मुझे willpower नहीं होता, right. then ना ये medicine, ना ये कुछ, nothing would work. वो that why should be there ना. Exactly. So because at that time I was hellbent कि now I need to leave cigarettes. So and because of that I took those medicines also. Because of that, I put up with those withdrawal symptoms also, and I needed that gap. And then after you stop that medicine, then is your willpower not to reach for the cigarette. Right. You know, अब if you reach for that cigarette, then you are. Then वही जो हमने पहले बात करी. Exactly. You Then start breaking the pattern. Exactly. Then वो एक के बाद 2 के बाद 4. So then I started staying away from cigarette. I started staying away from my friends who were smoking. Not away from my friend, but while they were smoking, मैं या तो You got to know अभी मामला गड़बड़ होने वाला है. बिल्कुल. Because उस खुशबू से भी आपको कुछ होती है. Right. So then after some time, then Okay. So now even I'm between smokers because now my willpower is so strong. और या मैंने ये सोच लिया कि मुझे उसके पास जाना ही नहीं. So 5 years you haven't had any, I haven't, no. right? And I will not. That's so nice to know and so good to know. इनकी हैबिट्स अच्छी होने लगी. मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा आइस लेते थे तो आइस बंद कर दी, कंप्लीटली स्टॉप्ड स्मोकिंग हो गया. एंड ओवरऑल ड्रिंकिंग पैटर्न में कि अगर पार्टीज भी हो रही है तो नॉर्मली जैसे उस समय 2-4 या वो भी ड्रिंक्स लेते तो सो वी आई कुड सी द चेंज की हर की वो चीज है. आई थिंक इट वाज अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल दैट हैबिट्स. तारीफ ये है कि माइंडफुल था वो. उसने रिकग्नाइज किया. 90% लोग वहां फुल स्टॉप लगा देते हैं. इसने कहा नहीं, मुझे रिवर्स करना है. I want to lead my life on my terms. फिर क्योंकि वो दिमाग में कुछ ऐसे स्विचेस ऑन ऑफ हो गए, कुछ हुआ कि मुझे कुछ करना है. Okay. ऐसे जयनीति सिंह, you have to do something with your life. So those days were tough and I was very conscious. जाता था जरूर, but जो भी वहाँ पे जो भी वो whoever used to be the group leader or something, उनको पहले ही बोलता था कि भैया मैं अगर जो पीछे रह रहा हूँ तो आप लोग प्लीज निकल जाना, मैं अपना घर पहुंचूंगा. मुझे नहीं अच्छा लगता था. So those were the tough days. Now at least मैं कहीं पे बीच में रहता हूँ, so ठीक है. And so I've come a long way from there. But those hesitations आज तक again थोड़ा बहुत reservations रहता ही है. हम लोग सब अपने past थोड़ा बहुत हमेशा carry करते हैं. तो इस चीज में मैं आज भी conscious रहता हूँ, जो which makes things tougher for me. मतलब मेरे it's more my mind that works on me on these things. मैं सोचते रहता हूँ कि I hope I'm not spoiling the group dynamics. I hope speed and the tempo
सो ये सब चीज की वजह से एक टफनेस रहती है, प्लस ऑफ कोर्स माय फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का मतलब जितना भी है, जो धीरे धीरे करके आई एम सीइंग दैट विद बीइंग रेगुलर थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट शुरू में तो कुछ नहीं हिलते थे भाई, कोई भी हाथ पांव सब चीज अकड़े हुए थे. नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल माय ट्रेनिंग्स. इट्स नॉट दैट आई डोंट फील लेजी इन द मॉर्निंग्स. एक रूटीन तो बन ही गया है मेरा जल्दी उठने का. कभी कभी नहीं होते अच्छे दिन, बट मोस्टली आई लुक फॉरवर्ड टू माय मॉर्निंग्स. और जब कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ, इट्स एक्चुअली मोर अपसेटिंग. उस दिन मुझे लगता है कि मेरा ऑफिस का वाला दिन भी ठीक से नहीं बीतेगा. फ्रॉम द टाइम आई ज्वाइन बूट कैंप येलो, फिर थोड़ा सा अपने आप किया, फिर आपके साथ एक रिश्ता जुड़ा. सो राइट फ्रॉम द डेज ऑफ बूट कैंप इन आई फेल्ट कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ. मैंने पहले भी बताया कि मैंने वो काउच टू 5K वाला प्रोग्राम किया था, तो उसमें वो 400 मीटर दौड़ाते. तो पहले मैं अपने को भी पुश करता था, जो जिस दिन सेशंस नहीं थे, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा हूँ या कुछ करने की कोशिश करता था. वंस आई हैड गॉट ऑन टू दिस पाथ, मैं अब पीछे हटने वाला हूँ. मैंने सबसे पहले 7 किलोमीटर्स का ट्रेल रन में पार्टिसिपेट किया था. वो मेरा फर्स्ट एक ऑफिशियल इवेंट था, और एंड आई डिड इट इन रीजनेबली गुड टाइम. मेरा ओवरऑल रैंकिंग भी काफी अच्छा था. जयपुर हाफ मैराथन, reasonably good time, 2 घंटे 12 मिनट. It was really a goosebump moment. के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए. Now, also I will still blame myself because I may have started things too late, but I think that is when मेरे को realization हुआ कि I was not in this active circle. I was not, मेरे कोई भी friends ऐसे बहुत ज़्यादा physically active नहीं थे. I said कि कहीं तो मुझे जाना है, because टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में ऐसा कोई ग्रेट नॉलेज. प्रोग्राम दैट आई जॉइंड एट बूट कैंप येलो वाज, इट वाज कॉल्ड काउच टू 5K, मिक्स सेशंस ऑफ strength training. All by the end of the program, I started running 5 kilometers, and I just liked it so much that I joined their 5 to 10K program. So then I started running the 10 kilometers. So I felt good. You get free advice in this country from your family, your friends, unwanted opinions, unwanted advice. Never been active all your life. You've never worked out so much. उनकी body उसी तरह से tuned है because they've been doing it from like beginning or for years and years. Now you are 56, 57. How can you do this? I said, no, I didn't want कि I'm trying to do something good, but वो मुझे लेने मैंने बंद कर. This was soon after that. I was there in boot camp for 7-8 months. 24, I was running. I participated in some 10 kilometer running events also. एक ट्रेल इवेंट भी मैं डर से I stopped it. So I said, okay, I will cycle, I will walk, and I will join a gym. So I was back to CultFit. I do like CultFit because of my lack of knowledge of exercise and what and where to, which muscles to focus or what to exercise, which Okay, you have more knowledge. Back to CultFit. Again, I started going to CultFit because I liked their group classes. So I used to go, and they had a 1-hour group class, and I was enjoying that. And then the accident happened that we met. Jerry has stopped eating altogether. Okay. He doesn't eat only. It's like कि मैं खाऊंगा but वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं अब कुछ. और transformation तो it's like 360 degree eye opener. Okay. हाँ, बता अगर जिया जी जितना डेडिकेशन हम में आ जाए ना, तो हम तो पता नहीं बस. Hey Shivam, how are you? Hello. How are you? I'm good. I'm also good. What do we have for today? So today we are doing multiple exercises. So we are improving our strength. Let's get on with it. Let's do. Let's go. एक और set. I'll give you the count. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20. Yeah. I remember हम वो जहानपना फॉरेस्ट में मिले थे. लक्ष्मी का कुछ एक बुक रीडिंग वाला वॉक था, और जब हम वापस जा रहे थे तो
आपसे काफी बातचीत करी थी। आई फेल्ट वेरी एनकरेज कि आप क्या क्या कर रहे हो। आप थोड़ा सा ही बताया था आपने अपने बारे में। मैं उस समय तक काफी एक फिटनेस ओरिएंटेड सा हो गया था। मुझे मैं उन दिनों बूट कैंप येलो जिधर मैं अपना शुरुआत ये सीरियस ट्रेनिंग थोड़ा सा शुरुआत किया था। लक्ष्मी आपका बहुत तारीफ करे थे अबाउट योर डेडिकेशन एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट व्हाई नॉट आस्क यू इफ यू कैन हेल्प मी फर्दर। मुझे थोड़ी हेजिटेशन थी, बस मुझे मालूम था कि आप पता नहीं कहाँ किस कॉर्नर ऑफ दिल्ली से आते हो। एनीवे लक्ष्मी ने कहा कि आप पूछ तो लो, क्या हद से हद यही होगा कि वो मना करेंगे। So anyway, I asked you, I think I sent you a message and you were willing to sign me up as your student. I was happy. I had to get her into this routine and exercise. बस वहीं से शुरुआत हो गई and it was nice. And that is where we began. Okay. जिस एज से मैंने ये स्टार्ट किया, मुझे अपने लाइफ में कभी भी ऐसा बहुत एक्टिव नहीं रहा हूँ। आई थिंक दिस इज माई मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ माई एंटायर लाइफ currently. So I was little apprehensive about how my body will react, how my body will behave. And जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि lot of friends also discouraged me कि भाई आप कर क्या रहे हो इस एज में। And तो उससे मैंने रोक भी लिया था अपने एफर्ट्स। तो मैंने बूट कैंप में आई हैड लर्न, मतलब मैं उनके जो भी कर रहा था, आई थिंक 6-8 महीने किया हूँगा मैं। एंड उसके बाद मैंने एकदम रोक दिया। किसी ने बोला कि तुम्हारे नीज खराब हो जाएंगे, एक तो बॉडी की तरफ से, एक मेरे एज की तरफ से, और एक हेजिटेशन था कि आप बहुत यंग हो और आप मुझे देखोगे कि ये कैसे कर रहा है एक्सरसाइज। बट मैंने कहा चलो वो सब चीज भाड़ में जाए, स्टार्ट करते हैं। ये शायद अभी भी काफी सारे रिजर्वेशंस हैं, बट ठीक है, आई एम ओवरकमिंग देम। कि आप इस एज में भी चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो 50 प्लस लोग हैं, वो दे थिंक कि इट इज इम्पॉसिबल, मैं हैबिट्स नहीं चेंज करता, आई हैव ऑलरेडी सो मेनी डिजीजेस एंड ऑल। सो द मोर इंस्पायरिंग पार्ट इज द वे आई फील इट इज दैट, हाँ, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत से लोग कर सकते हैं, डेडिकेशन भी हो सकती है, राइट। द मेन इंस्पायरिंग पार्ट इज दैट कि इस एज में भी कर सकते हैं एंड सो ड्रास्टिकली। कि मतलब जिया जी इज ट्रू इंस्पिरेशन। मतलब अगर जिया जी को देखो तो ऐसा लगता है एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर। मतलब मेरे को तो जो मिलता है, मैं सबको उनकी स्टोरी सुनाती है कि सच, मतलब उनको देख के फील इज तो वाओ। आई थिंक पहले बहुत रिएक्ट करता था हर एक चीज से, बहुत ज्यादा एंड इंस्टेंटेनियस, बट आई थिंक आई हैव लर्न टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ दैट। एंड ये मेरा मिशन है कि मैं इसको वेदर थ्रू, अभी मैंने कुछ नहीं स्टार्ट किया है, बट मुझे लगता है कि दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ माइंड दैट मुझे आई हैव टू वर्क ऑन। आई हैव इम्प्रूव्ड, आई डोंट रिएक्ट सो, आई एम नॉट सो वॉलेटाइल इन माई रिएक्शंस नाउ, आई एम नॉट सो हाइपर इन माई रिएक्शंस नाउ। पहले मैं लिख देता था। When did this change start to happen? The last 2 years or last 5 months, 4 months or whatever?
एक एज होती है सब चीज को रियलाइजेशन होने की. सो आई थिंक इस पार्ट का मस्ट बी लेस देन अ ईयर दैट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट. सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं इसको कुछ अचीव कर लिया. आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन दिस कॉन्स्टेंटली. आई एम कॉन्शियस अबाउट इट. बट ये भी होता है कि मैं जितने लोग को जानता हूँ, दे ऑल look at me or what I was in the past. सिंसियरिटी तो उनमें शुरू से ही है, पहले भी थी और आज भी है. लेकिन उस टाइम पे कहना चाहिए एक वो जो मैच्योरिटी वाली बात होती है वो जरा कम थी. तो जो अक्कड़पन होता है इंसान में वो उस टाइप का थोड़ा ज्यादा था. खाने पीने में भी अपना मस्त थे, कोई ऐसी बात नहीं. सब जैसे नॉर्मल है कि एक उम्र होती है उस हिसाब से सब सही था. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी उनमें कहना चाहिए एक जागरूकता आई, समझ आई कि हाँ भाई अब मुझे अपनी सेहत का भी थोड़ा सा. और जब से थोड़ा डॉक्टर के संपर्क में आए तो उसके बाद तो फिर एकदम अलर्ट हो गए कि अब तो मेरे को बिल्कुल कंट्रोल करना ही करना है. It's becoming a big challenge for me because I mean even my wife, she assumes कि मैं वो सही हो रहा हूँ. Maybe I need to change my way of speaking, but it's a fact that एक जो past perception है मेरे relatives में, families में, मेरे friend circle में, मेरे social circle में, that people still carry. So they are not able to see me as a different person. Whereas I think internally and from within, I have changed a lot. I have, and I'm making those efforts. So, but if somebody sees me over a period of time, I think they will definitely be able to remark. This is so important. And the earlier we start in life, I regret. I have my regrets that almost at 60, I have woken up to this. Now I think that I am running short of time. I don't know how many more years I have ahead of me. So I keep saying, why didn't I start this earlier? So I've started getting people active in my office also. Now I have made a group and there are almost 30 people who have become active. I got them all on Strava. So now every morning I see somebody's run 2 kilometers, somebody's running 10 kilometers, somebody's running 15 kilometers. And this is just in the last 1 month. पर ये था कि जय में इतना स्टेमिना है, इतना उनमें अपने आप में उस चीज को वो बिल्कुल सच्चे दिल से करते हैं कि वो जो करते हैं वो उसको पूरा करते हैं. और आज जब मैं उनको देखती हूँ तो आई कांट बिलीव कि ये वही जय हैं जो हमने शुरू से मिले थे उनको. मेरे ख्याल लास्ट 2 ईयर से वो लग रहा है कि उनमें काफी धीरे 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 चेंज आया. और अब तो हमें ये कहना पड़ता है कि जय बस अब और मत करो, इट इज टू मच. अब आप बहुत स्किनी लगते हो क्योंकि पैर तो उनके वैसे ही पतले. अब तो सारे ऑल ओवर वो इतने पतले हो गए हैं कि एक्चुअल में अब वो जचते बहुत हैं एकदम ऐसे ट्रूली स्पीकिंग कि वो बिल्कुल लगते हैं कि अंग्रेज है, कोई फॉरेनर बैठे हैं. और अपनी बॉडी को उन्होंने जिस प्रकार से रिड्यूस किया है. और जब हम सुनते हैं कि वो इतनी उसमें रनिंग में इतने करके आए हैं दौड़, कभी सुनते हैं कि साइकिलिंग वो इतनी दूर करके आए हैं कि भी 150 किलोमीटर की एक दिन में साइकिलिंग करी, तो हमें खुद हैरानी होती है. और हम उन्हें कहते हैं जय इतना मत कराया करो, तो उनका यही रहता है. अच्छा, ऐसा भी कई बार हम कह देते हैं कि जय बस करो, क्योंकि एक तो देखिए उनकी स्टंट लगा हुआ है और उसमें भी हम कहते हैं तो कहते नहीं मैं चेकअप कराता रहता हूँ और डॉक्टर से पूछे बगैर मैं नहीं जानता. फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है जैसा वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है और देखने में तो अच्छे लगते ही हैं अब, बल्कि अब नीति इतनी अच्छी नहीं लगती जितने वो देखने में अच्छे लगते हैं. उनसे कई बार इंस्पिरेशन भी मिलती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो कर नहीं पाती सच में इतना. मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कर पाऊंगी. बट यस, उन्होंने जो करा है वो कमेंडेबल है. न खाने पे भी उनका इतना कंट्रोल है. मतलब जो इंसान मतलब उसको ये लगता था मैं और खा लूं, मैं और खा लूं. कई बार हम तो घूमने एक साथ जाते थे तो ब्रेकफास्ट जब वो लेते थे तो उनसे तो खैर कभी नहीं कहा, लेकिन मन में सोचते थे हाय अभी तो इन्होंने ये खाया है, अब ये खाएंगे. और अब ये कहते कहते थक जाते चाहे थोड़ा सा तो और ले लो. अब नहीं लेते. अब वो नहीं लेते. अपने आप में उनको विल पावर बहुत स्ट्रांग है उनकी. बिल्कुल वो जैसे वो एक बार वो
अमिताभ बच्चन के बिल्कुल शक्ल के जो उन्होंने वो लिया था कौन बनेगा करोड़पति में, तो बिल्कुल वही है कि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से कितनी छोटी है, इतनी छोटी या इतनी छोटी। ऐसे ही कि जय पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, पहले ऐसे थे अब ऐसे हुए फिर वो ऐसे हो गए। हमारे पैकेज फूड्स, हमारे रेस्टोरेंट फूड्स सबसे बेकार होते हैं, बट हम सब वहीं जाते हैं क्योंकि इट्स क्विक, इट इज टेस्टी एंड they become tasty for a reason. It's those natural foods are never so tasty compared to the restaurant foods. So जिसको भी ये realization हो जाए, earlier the better. It is it's best for anybody. I think हमारी lifestyle ये phone और TV से इतना, और मेरा भी, I spend a lot of time on the phone even now. बट आई थिंक ये जो स्क्रीन टाइम हम जो स्पेंड करते हैं ना, हम बचपन में हम बाहर जाते थे और आवर पेरेंट्स यूज्ड टू से कि अरे बहुत देर हो गई, अंदर आओ वापस, अब घर आ जाओ। अब है कि बच्चों को बोले जाओ बाहर जाओ खेलो, ये फोन छोड़ो, ये आईपैड छोड़ो, ये टीवी छोड़ो, कंप्यूटर छोड़ो। So it's just become reverse. It's going to be only a win for the medical industry, for the pharmaceutical industry, for the doctors. मैं क्या चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ बदल रहा हूँ, ये तो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, उसने भी नहीं देखा होगा। मैं जल्दी सो जाता हूँ 9, 9:30 बजे। I've cut myself off from being a social person. I miss my friends. I miss the partying. So ये सब कोई नहीं देखता है। देखते वो है कि मैंने क्या पोस्ट किया अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, कि मैं मोटरसाइकिल ट्रिप पे जा रहा हूँ। ओह you have so much time for your motorcycle trips. They don't realize कि मैं सिर्फ वीकेंड्स पे जाता था। हाँ, of course there were long trips also, but अगर जो मैं फ्राइडे नाइट को गया और संडे नाइट तक वापस आ गया, मैंने किसी का टाइम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू हैव टू क्रिएट टाइम फॉर व्हाट यू वांट टू डू, और आप क्रिएट कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। यू कैन नॉट दिन में सिर्फ 24 घंटे स्लीप इज एसेंशियल। यू हैव टू उस 24 घंटे में से अगर जो 8-9 घंटे स्लीप में चले गए, 8-9 घंटे आपके ऑफिस में चले गए, तो बाकी आपको देखना है कि उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर जो मैं सुबह 7 बजे उठ करके नहा करके जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाऊं, सो नाउ आई हैव एडेड 2-3 hours. That is when I do. I am running, I am cycling, I am maybe now I started swimming. So people see just this part. My job remains the same. I don't have I won't say, but 8-10 घंटे तो हम सब काम करते ही हैं, और वो तब भी था, अभी भी है। So I think that person is not totally aware of what changes I may have brought about in my routine, or what sacrifices I have, self-sacrifice. ये out of choice मैंने किया है, but maybe that person hasn't seen कि ये क्या मैं ये किस लिए मैंने किया है, या क्या मैंने किया है to create that time for things I've started liking. And maybe through this, if that person sees this, then the person realizes, or if I come to know, I would definitely like to have a talk with that person. So let's see, and I'm sure they're all close to me, so I will definitely love to talk to this person, whoever it may be. To answer the last bit first, there is no shortcut. It's a long, hard journey, and I have been using this word again and again, but lots of sacrifices and lifestyle changes are required. जो चीज हम लोगों को अच्छा लगता था, जो चीज हम लोग सोचते थे कि वो अच्छा है, actually those things worked against us for our health and wellness. Dinners, erratic eating habits, so these things, but ये realization खुद आती है, ये it's not
कि कोई आपको जबरदस्ती कर देगा. My mother, she would love to see me like this today. I mean, she's no more, but वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक एक्टिव रहूं, या मतलब उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, बट मुझे मेरे भेजे में कुछ नहीं आया था उस समय. आज के दिन में अपने आप आया है. This is self-realization, but so that is the second part of your question, and the first part is, oh, you feel so much better. You feel so much more confident. You can wear better clothes. You are more presentable. You are more, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है. मतलब उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैंने शायद ही किसी को देखा है. मैं अभी तो इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैं कुछ स्कूल वाले अपने और फ्रेंड से मिला था किसी शादी में. हर आदमी के मन में ये था, यार जेनेती ये कर रहा है. कि सबका तो आइडिया था जेनेती, जो कि यार थोड़ा सा ओवरवेट था, ना पढ़ाई करता था, ना ये जेनेती भाग रहा है, मैराथन कर रहा है. मतलब शौक था. और मैं तो अभी भी उसको बोलता हूँ, यार तू इंस्पिरेशन है. जेनेती इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. हम लोग नहीं कर पाते. आज मेरे को कोई बोले 2 किलोमीटर दौड़ लो, मैं नहीं. वो आई थिंक इज अ इंस्पिरेशन फॉर हिज डॉक्टर ऑल्सो. उनके डॉक्टर ने भी शायद कहा है कि भाई आप जैसा पेशेंट बोलो या जो भी शब्द बोलो, कि मेरे पास शायद ही कोई हो. We are here in Rewari doing this Rao Tula Ram Rewari marathon, and I was the 80-minute pacing bus. मेरे ऑफिस से इतने सारे लोग आए थे, and some people were running first time, and that to 10 kilometers. So ये मेरे लिए एक मतलब it was like a big pat on my back कि ये सब लोग मेरे लिए आए थे, and इन सबको भगाने में मजा आया. मतलब वो मुझे, हाँ, वो मुझे गाली दे रहे होंगे, I don't know, वो बाद में मालूम चलेगा, कल परसों अभी ऑफिस में पता चलेगा. But otherwise it was good fun. It was good fun. When I came to know about his story and the way he has transformed from what he was, and he shared a lot of pictures with us, I was shocked. I think it's very commendable because it does not take only dedication, it also takes a lot of discipline, and each and every day doing the same thing and then keeping it that way. I think that's a very big deal. Very few people achieve that, from coming from that background to doing a great cycling event or a great running event, and the speeds, it's amazing. So I think and he's a brilliant friend. I think that's also a good human being along with the runner. He pushes everyone to do it. So I think fantastic. And lately I'm seeing जो transformation इसमें आया है, जो internal discipline आया है, that's phenomenal. मतलब the world can learn from Jainati कि what is internal discipline and commitment. मैं definitely कहूँगा the commitment he had and he has demonstrated, that is phenomenal. Very few people have that kind of a commitment. After seeing Jainati's transformation, I think all of you guys should connect and contact with Shivam, because he has done a miraculous job by transforming Jainati. कुछ लोग होते हैं जो माहौल में ढल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माहौल ही बदल देते हैं. अभी जो आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, ये किसी एक ऐसे ही पर्सन की है. हर किसी के अंदर अपनी अपनी महाभारत चल रही है. हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही होती है. कुछ लोग होते हैं जो उसे ओवरकम कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस प्रेशर के अंदर दब जाते हैं. मैं एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ जो हमारे मिस्टर सिंह के साथ और मेरे बीच हुई थी. जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मुझे ये लगा था ये 58 इयर्स के एक बूढ़े इंसान जो कि दिखने में और फील करने में एक मुझे बुढ़ापा झलकता था. बट जैसे जैसे ओवर द मंथ्स हमने ट्रेनिंग करी है, इम्प्रूव किया है अपनी बॉडी को, माइंड को, फिटनेस को, आज के टाइम में उनका जो एक फील है, उनकी बॉडी का जो एक फील है जो मुझे आता है, इट इज़ वे यंगर, इट इज़ मच 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 मोर यंगर.
उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ और मैं बहुत सारी एडवाइजेस लोगों को देता हूँ, और मैं हमेशा एडवाइजेस ऐसी देता हूँ जो मैं खुद फुलफ़िल कर सकूँ, तभी मैं वो आगे ट्रांसफ़र करता हूँ। ऐसी ही बहुत सारी एडवाइजेस मैंने हमारे मिस्टर सिंह को भी दी होंगी या फिर दी हैं, कुछ मुझे याद भी हैं। वो इस तरीके के पर्सन हैं कि उनको कुछ समझ आ जाता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, ये मेरे माइंड के लिए अच्छा है, ये मेरी रनिंग के लिए अच्छा है, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, देन ही गोज़ ऑल आउट फॉर इट। हेल्थ और फिटनेस सेक्टर में इसी चीज़ की कमी है। हम जब किसी को हमेशा हेल्दी होने के 2 से 3 रास्ते होते हैं। एक, आप you keep on piling up medicines and you just sustain your life, or you work out daily, you exercise daily, you follow your diet daily, you sleep well, and slowly and steadily आपकी life, आपकी body, आपका mind in line आते चले जाएंगे। It is a longish process, but ऐसा हो सकता है। हमेशा एक यूनिटरी मेथड होता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वो पेशेंस होती है वो उस पर चल पाएँ। हमारे मिस्टर सिंह उनमें से एक थे, रादर एक हैं। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें अचीव करने का हमारा प्लान है। बहुत कुछ अचीव करने का प्लान है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मिस्टर सिंह आपको हमारे चैनल ऑल फिट क्लब पे दिखते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आई होप दिस होल पैकेज ऑफ वीडियो हेल्प यू अ लॉट। आई होप इस एक डॉक्यूमेंट्री ने आपके अंदर एक वो आग लगाई, और वो आग कितनी जलती रहेगी वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना तेल डालते रहोगे डेली बेसिस पे। I hope this video helped you a lot. I hope Mr. Singh's story helped you a lot. क्योंकि आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आज भी उनके इर्द गिर्द लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे चॉइसेस वो डेली बेसिस पे अपने लिए चूज़ करते रहते हैं। जितने टफ टाइम्स होते हैं उतना वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाते हैं, उतना वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ ही bounces back stronger. This is what is important. I hope this video helped. Till then, eat healthy, breathe deep and move a lot. अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए ऑल फिट क्लब से, प्लीज़ reach out to us. We have free training also available for everyone, for almost everyone. You just need a good healthy body, a good movable body and a right mind to choose right for yourself. Thank you so much. ख्याल रखिए अपना।